Good morning, everyone. I hope you are able to hear me. Myself, Dr. Yamini Ramesh, and I welcome you on behalf of Asha Homeopathic Academy and Homeopathy Junction. Today, we are doing Revive the Basics Session 4. This is our second season of Revive the Basics, where we invite different speakers, different doctors who have expertise in homeopathy, in basic clinical understanding from different modern medicine practitioners as well. So today is a very, very special session where we are doing basic and cardiac life support with Dr. Vineet Sharma. So I want to introduce Dr. Vineet. Dr. Vineet is a senior homeopathic physician from Indore. He's a MD, physician, MD in homeopathy. And along with that, he has a very rich clinical experience of uh, hospital as well as he's practicing privately. So I'm really, really happy to have Dr. Vineet. He is a rich amalgamation of clinical experience from hospital industry, from seeing patients in emergency as well as in his clinic as a homeopath. We are very happy to have you, sir. Thank you so much for accepting this invitation and coming on this platform of Asha Homeopathic Academy. And this basic and cardiac life support is not only important for doctors or physicians. It is important for every person, because if you learn this technique, basic life support, giving CPR, understanding when to assist a person in emergency, it can be a life-saving skill, and it is. So I'm really thrilled to invite Dr. Vineet, sir. He will guide you for basic cardiac support. If you have any questions, please keep those questions in the chat box. At the end, we will answer all those questions. And this is not a theoretical class. He will actually show you how to give basic life support, basic cardiac support. So you will see a lot of practical thing happening here. Thank you so much for listening to me. And let's go to Dr. Vineet. Sir, over to you. Thank you. Thank you, ma'am. And good morning to all of you, and Jai Shri Krishna. Today session is just to see the practical knowledge of basic life support. How to learn the basic life support is important, and every steps, it should be proper, and it can lead to just to live any lives. हम एक ये स्टेप सिखाएंगे यहाँ पर कि आपको किस तरीके से किसी की लाइफ बचाना है व्हेन द पर्सन इज सफर फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी विदाउट डिले। आपको किस चीज पर फोकस करना है, आज आशा होम्योपैथिक एकेडमी की ओर से मैं आप सभी को ये चीज बताऊंगा कि हाउ टू मैनेज एनी कार्डिक पेशेंट्स, मतलब हाउ टू मैनेज and how to prevent the life, how to prevent the brain damage in between. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक वीडियोस आप ध्यान से देखिएगा। आप मुझे सिर्फ 45 मिनट्स दीजिए, 45 मिनट्स आपका ध्यान यहीं पर है स्क्रीन पर, और सिर्फ 45 मिनट्स में आप वो चीज जान पाएंगे कि हम मैनेज कैसे करें किसी भी परीक्षा। We'll just see the video properly for 2 Okay, minutes. now it's time for you to practice all of the One Rescuer BLS skills together. Hey, are you okay? Activate the emergency response, grab the AED. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. We've covered everything you need to know to recognize cardiac arrest and prepare it's time for एग्जैक्टली फिर से Okay, देखिए now कि it's हमें time किस for you to तरीके से practice सीपीआर करना है, all किस of the तरीके One से Rescuer चेस्ट BLS ऑपरेशन skills करना है, together. ये देखना इंपॉर्टेंट है। Hey, are you okay? Activate the emergency response, grab the AED. तूने ज्वाइन करा? देख ले 2 मिनट कभी सीपीआर तो मोनू बता रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अपने आप को 13, म्यूट कर 14, लीजिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. Now, so Okay, now exact this video, how to do the CPR proper depth, 1, proper rate, 2, and 2 ventilation in between. That is exact CPR. आपको मैं ये बता दूं कि इसे बेसिक लाइफ सपोर्ट में जोड़ा गया है और बेसिक लाइफ सपोर्ट में सीपीआर का यही महत्व होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, नॉट कि आप चेस्ट को कहीं भी दबा रहे हैं। हमें दबाना कहां पर है, कितने डेप्थ में जाना चाहिए और कितने रेट में देना है, ये महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किस रेट में दब रहा है चेस्ट और किस रेट में आप चल रहे हैं। इसलिए लेमैन को आना जरूरी है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट या कोलैप्स व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, बेहोशी में कहीं भी मिल सकता है मरीज। तो फिर से उस वीडियो को आपने देखा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का वीडियो है ये, तो किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, और विदाउट डिले, विदाउट एनी टाइप ऑफ डिले, मतलब 10 सेकंड, मोर देन 10 सेकंड, वो एक भी चीज को इधर उधर नहीं कर रहे हैं। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे भारत देश में करीब 1 साल में 7 लाख लोगों की मौत सडन कार्डियक अरेस्ट से होती है। सडन कार्डियक अरेस्ट में हम सिर्फ इन चीजों को नहीं जान पाने के कारण से शायद वहां रहकर उन लोगों को नहीं बचा सकते जो कार्डियक अरेस्ट से जा चुके हैं, या अब आने वाले समय में हमें कोई कार्डियक अरेस्ट ऐसा मिल जाए जिसमें हम इस तरीके के सीपीआर देकर उसको प्राइमरी एड तक पहुंचाया जाए, हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, शायद उसकी जान बच जाए। और मैं विटनेस बैठा हुआ हूं, हम लोगों को आईसीयू में काम करते हुए करीब 15 साल हो गए हैं। हम लोगों ने आईसीयू में भी बचाए हैं और 1-2 केस मुझे बाहर भी मिले हैं, तो ईश्वर की कृपा से वो भी बचे हैं। मैं बता दूं आपको कि 4 मिनट के बाद यदि ब्लड फ्लो ब्रेन में नहीं पहुंचता है तो ब्रेन डेथ, मतलब ब्रेन परमानेंट ब्रेन डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति को आप 5 से 10 मिनट के बाद भी बचा पाते तो ब्रेन डैमेज होके कोमा में रह के वेंटिलेटर पर हॉस्पिटल में रखकर ब्रेन डैमेज व्यक्ति हार्ट चल रहा है। दैट इज नोन एज हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज, ओनली बिकॉज ऑफ सडनली कार्डियक अरेस्ट एंड दे स्टॉप द हार्ट। यहां रुका हुआ था ब्लड, हार्ट रुका हुआ था, ब्लड फ्लो नहीं जाने की वजह से जो वाइटल ऑर्गन ब्रेन है उस परमानेंटली डैमेज, ड्यू टू द इरिवर्सिबल डैमेज। अब नथिंग, अब आप कुछ नहीं कर सकते। जितना समय आपके पास है गोल्डन आवर्स,
बोला गया है कि आप 3 से 4 मिनट में के अंदर ये प्रोसेस चालू कर दें उस व्यक्ति की। यदि आपको सडनली कोलैप्स कोई व्यक्ति बाहर गार्डन में घूमते हुए मिला, तो हमें करना क्या है? आज हम आशा होम्योपैथिक एकेडमी की ओर से यही जानना चाह रहे हैं कि हमें करना क्या है। मैं इस थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद में, आपको थ्योरेटिकल स्टॉप के बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा। तो जितने लोग भी अभी पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं, तो आप प्लीज, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रॉपर तरीके से बने रहे, एटलीस्ट 1 घंटा। इस 1 घंटे में आप इतना जान पाएंगे कि आपको करना क्या है एट द टाइम आप कार्डियक अरेस्ट एंड कोलैप्स्ड पर्सन या कोलैप्स पेशेंट्स। ओके, अब एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपको। वीडियोस के जरिए ही मैं पहुंच पाऊंगा आपके द्वारा। आप सिर्फ वीडियोस देखिए, वीडियोस देखने के बाद ही मैं आपके जरिए पहुंच पाऊंगा, इसलिए वीडियोस आप ध्यान से देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हर एक पॉइंट्स देखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग हैं कीन ऑब्जर्वर। एज ए होम्योपैथ यू जस्ट सी द कीनली, मतलब कीन ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए कि हम वहां का क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा या आप मेरे से पूछेंगे, वो उस समय की बात रहेगी। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखिए वीडियो। On any given day, you could come across a victim of cardiac arrest, where your actions and training can determine the outcome. Today, we'll review the key elements of providing basic life support to adults, children, and infants. This will include both CPR skills and AED. अभी हम यहाँ पर सिर्फ एडल्ट की बात करेंगे, चिल्ड्रन और इन्फेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एडल्ट में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो इसलिए एडल्ट की ही बात होगी, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन की बात नहीं use, होगी। as well as how to help a victim who is choking, and a discussion of special considerations. High-quality CPR improves a victim's chances of survival. There are several critical elements of high-quality CPR you should remember. Start compressions within 10 seconds of recognition of cardiac arrest. Push hard, push fast. Provide compressions at a rate of at least 100 compressions per minute and at a depth of at least 2 inches or 5 centimeters for adults. Allow complete chest recoil after each compression. Minimize interruptions. Try to limit interruptions in compressions to less than 10 seconds. Give effective breaths that make the chest rise. Avoid excessive ventilation. There's no pulse. 1, 2, 3. CPR begins with compressions. Because compressions are so important to a victim's survival, they need to be started immediately, within 10 seconds of recognition of cardiac arrest. Early CPR keeps the oxygen and blood flowing No, to the see heart the and brain. exactly the anatomy of the patient, how the CPR is work, how the compression of chest is work, कैसे काम कर रहा है कॉम्प्रेशन, वो आपको लेना देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हार्ट रुकता है या रिदम गड़बड़ होती है हार्ट की, ड्यू टू द कार्डियक अरेस्ट या ड्यू टू द सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक आया, व्यक्ति का हार्ट रुका हुआ है, तो हमें क्या करना है? आर्टिफिशियली इज पंपिंग द हार्ट, क्योंकि उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वाइटल ऑर्गन ऑफ द ब्रेन है, वाइटल ऑर्गन उस तक पहुंच पाए, क्योंकि वो ब्रेन डैमेज से बच सके। मेन एम सीपीआर का यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमें ये जानना जरूरी है। हम रियल वर्ल्ड की बात अलग होती है, जब भी आप वहां पर रहते हैं, जैसे अभी मैं आराम से समझा रहा हूं आपको, लेकिन यदि रियल वर्ल्ड, यदि मेरे सामने कोई कार्डियक अरेस्ट का मरीज होगा, तो मैं हड़बड़ी मचाऊंगा। हड़बड़ी होती है, आम व्यक्ति को होती है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हड़बड़ी नहीं मचाएं, प्रॉपर तरीके से सीपीआर करें। हाउ डू सीपीआर वर्क नाउ? सी, creating valuable life-saving time until spontaneous circulation is restored. 1, 2, 3. To be most effective, CPR should be performed as a team with rescuers completing many tasks simultaneously. However, in order to be an effective team member, you need to master the individual skills of one rescuer CPR. Let's switch now. For this training, we will isolate the individual skills rescuers perform and then put them together, so you'll be prepared to deliver high-quality CPR and use an AED as a team. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम प्रॉपर तरीके से ये जानना चाहेंगे कि ब्रेन को
यदि आपने प्रॉपर सीपीआर नहीं दिया, डेप्थ नहीं दी, रेट सही से नहीं दिया, तो क्या हो सकता है और ब्रेन डैमेज कितना हो सकता है? ठीक है। Heart is an amazing organ. It works hard for us every second of every day, delivering blood and oxygen to every cell in our body. But when sudden cardiac arrest strikes, our heart suddenly and unexpectedly stops beating effectively and blood flow stops. Without any intervention, the brain, vital organs, and our heart will begin to die. Beginning CPR is the person's only chance of survival. Brain damage will start to set in within 4 minutes, and after 10 minutes, brain damage becomes irreversible. The power to save a life is truly in your hands. Now see the 3D image कि हमें कैसे सीपीआर बचाता है। एग्जैक्ट इस, मैं फिर से बता रहा हूं, जो लोग इधर उधर हैं या जिनका दिमाग इधर उधर जा रहा है, मैं निवेदन करता हूं लोगों से कि आप यहीं बने रहें, कहीं भी एक थोड़ी देर के लिए भी दिमाग इधर उधर नहीं भटकाएं। तो निवेदन है कुछ समय के लिए आप बने रहें। Performing CPR accomplishes 2 critical things. 1. Compressions move oxygenated blood to the brain to keep the brain alive. And 2. Compressions keep blood and oxygen moving to the heart muscle itself so that it has the best chance of resuming a normal electrical rhythm after a shock is delivered. As you begin compressions, you are creating an artificial pump and doing the work of the heart manually. With each good, effective compression, you are building up pressure in the system, which will move blood around the heart and up to the brain. It does take time to get the blood moving with CPR, so it is very important to push hard and push fast to build the pressure up, which keeps blood going to the brain. Pushing down at least 2 inches allows for the देखिए, heart मैं to थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं आपको, सॉरी। एक बात यहां बताएगी, पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। क्यों? क्योंकि डेप्थ 2 इंच जाना चाहिए। पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, उन्होंने बोला है वहां पर कि पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। नेक्स्ट जो स्टेप है 2 इंचेस, 2 इंचेस डेप्थ। चेस्ट की ब्रेस्ट बोन को कहां उसने हाथ रखा हुआ है? ब्रेस्ट बोन को 2 इंचेस तक नीचे ले जाना है। कॉन्शियस व्यक्ति ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा कि आपने उसको दबाया और एकदम उठ जाएगा। ठीक है, यदि वो सीजर्स के कारण से पड़ा हुआ है या फिर किसी और कारण से पड़ा हुआ है या पल्स उसकी चल रही है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सिर्फ अभी इतना जानना जरूरी है कि वीडियो के थ्रू कैसे सीपीआर किया जाता है। मैं अगला जो पीपीटी प्रेजेंटेशन लेके आने वाला हूं वो उसमें एक एक चीजें हैं। तो आप ये देखिए इसको एग्जैक्टली कि कैसे सीपीआर करना है। फर्स्ट, पुश हार्ड एंड फास्ट, हमें पुश करना है हार्ड एंड फास्ट। सेकंड इज 2 इंचेस डेप्थ रखना है। be नेक्स्ट, squeezed and blood to move out. Pushing at a rate of 100 to 120 compressions per minute, अब 1 मिनट में हमें कितना बार दबाना है? इतना रेट पर हमें दबाना है चेस्ट को। 100-120 कॉम्प्रेशन पर मिनट के हिसाब से हमें चलना है। is देखिए necessary to keep blood pumping. Let's see what happens when we take our hands off the chest. एग्जैक्टली अब आपने यहाँ पर हटा लिया, इंटरप्ट कर दिया। सीपीआर इसी लिए यदि इंटरप्ट किया उसको और इंटरप्ट करने के बाद में पता चला कि क्या होता है, देखिए Blood stops moving to the brain. It is for this reason that if you are taking your hands off the chest to deliver breaths or switching roles, it is critical to minimize time off the chest. Watch what happens when we don't push deep enough. Blood does not reach the brain. The same is true if we do not push fast enough. Watch what ये आपने प्रॉपर तरीके से नहीं दबाया, 1.5 इंच ही दबाया, 1 ही इंच दबाया तो क्या होगा? आप नो सी कहां तक ब्लड जा रहा है, ब्रेन को नहीं पूछ रहा है। इज ओनली थ्रू द कैरोटीड ओनली। happens when we push too fast. और The heart does not have time to refill with blood. Therefore, not enough blood gets pumped out. Watch what happens when we don't allow the body to decompress and allow the chest to fully recoil. हमें फुली रिकॉइल करना जरूरी है, वहीं के वहीं दबाना जरूरी नहीं। रिकॉइलिंग मतलब आपने दबाया, वापस लाए, फिर दबाए, वापस लाए, क्योंकि रीफिलिंग ऑफ द हार्ट, देन पुश ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रीफिलिंग ऑफ द हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पुश ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप पुश हार्ड एंड फास्ट 1, सेकंड इज 2 इंचेस डेप्थ, थर्ड इज 100 to 120 compression per minute and proper recoiling of the chest. Recoil करना जरूरी है।
ये इंपॉर्टेंट है, वहीं के वहीं दबाएंगे, हार्ट नहीं दबेगा, रिफिलिंग नहीं होगी। द मेन एम इज टू अचीव द ऑक्सीजन टू द ब्रेन विदाउट ischemia. The heart does not have a chance to refill with blood. Therefore, no blood gets pumped out. So remember, the key purpose of delivering compressions is to keep oxygenated blood moving within the heart and up to the brain to keep the brain alive. We need to push hard and push fast in the center of the chest. If ribs break, that's okay. What's not okay is allowing the brain to die from a lack of oxygen. So remember, you are their only hope. Do the best you can, and don't give up until medical help arrives or an AED is present. हमें जब तक दबाना है जब तक कि मेडिकल इमरजेंसी नहीं आ जाती, फर्स्ट एम्बुलेंस नहीं आ जाती, सेकंड जब तक कि व्यक्ति लाइव नहीं हो जाता, इट मींस ग्लिमिसिंग ऑफ द आईज, थोड़ा सा हिलने डुलने नहीं लग जाता और पल्स नहीं आ जाती। मैं पीपीटी में आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, पल्स है तो क्या करना है, पल्स नहीं है तो क्या करना है। You can do it. यस, अब ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इन शॉर्ट सीपीआर एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जिसके जरिए से आप किसी कार्डियक अरेस्ट के मरीज की जान बचा सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान का दिल अचानक से धड़कना छोड़ देता है और वो अचानक से गिर जाता है और इसकी सांस रुक जाती है। अगर किसी शख्स को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो इसके पास अगर कोई शख्स मौजूद है तो वो सीपीआर के जरिए उस मरीज की जान बचा सकता है। अदरवाइज कार्डियक अरेस्ट का मरीज कुछ ही मिनटों में जान बहक हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि सीपीआर कैसे परफॉर्म किया जाता है। जैसे ही आप किसी शख्स को गिरता हुआ देखें तो सबसे पहले आप उसकी नब्ज और सांस चेक करें। अगर मरीज की नब्ज और सांस रुकी हो तो समझ जाएं कि ये कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन हो सकती है। इस सूरत में सबसे पहले आपने लोकल इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके मेडिकल हेल्प तलब करनी है और फिर हेल्प आने तक मरीज को जिंदा रखने के लिए आपने मरीज को चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं, यानी मरीज की चेस्ट को जोर और तेजी से दबाते जाना है। पुश हार्ड ऐसा एंड करने फास्ट, के लिए आपको अपने पुश हार्ड एंड फास्ट, फिर से मैं आपको बताता हूँ, पुश हार्ड एंड फास्ट। ओके, हाथ की पाम मरीज की चेस्ट के सेंटर में रखनी है और फिर दूसरे हाथ लोकेशन ऑफ द पाम कहां पर रखनी है आपको एग्जैक्ट ब्रेस्ट बोन पर, वो जरूर देखिएगा। को पहले हाथ के ऊपर रखकर चेस्ट को ठीक उसी रफ्तार इंटरलॉकिंग ऑफ द हैंड्स, इंटरलॉक। यदि आपका डोमिनेंट जो हैंड है, डोमिनेंट हैंड को आपको नीचे रखना है ब्रेस्ट बोन पे, देन जो दूसरा हैंड है उसको इंटरलॉक करके, इंटरलॉकिंग से दबाते जाना है जिस रफ्तार से दिल धड़कता है। ऐसा करने से असल में आप मरीज के दिल का काम कर रहे होंगे, यानी मरीज की चेस्ट को प्रेस करने से ब्लड मरीज के जिस्म में ट्रेवल करने लगेगा और इस तरह मरीज का जिस्म, खास तौर पर ब्रेन, जिंदा रहेगा। आपने 1 मिनट में 100 कंप्रेशंस देने की कोशिश करनी है और ध्यान रहे कि कंप्रेशन जोर से देना है ताकि मरीज की चेस्ट 5 इंच तक नीचे जाए, अदरवाइज ब्लड ठीक से ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। इसके साथ साथ आप मरीज को माउथ ब्रेथ भी दे सकते हैं, यानी हर 30 चेस्ट कंप्रेशंस के बाद 1 सेकंड का 1 या 2 माउथ ब्रेथ। ऐसा करने से मरीज के सरवाइव करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नॉलेज की कमी की वजह से कई लोग कार्डियक अरेस्ट की वजह से हेल्प का इंतजार करते करते मर जाते हैं। इसलिए अगर आपको कभी कोई ऐसा केस नजर आए तो सीपीआर परफॉर्म करके उसकी जान बचाने की जरूर कोशिश करें। शुक्रिया। अब इस वीडियो को देख के आपको कई चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि हमारे भारतवर्ष में एक साल में 7 लाख लोग कार्डियक अरेस्ट से जाते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट। और सिर्फ हमें नॉलेज नहीं होने की वजह से हम वहां रहकर भी कुछ नहीं कर पाते। विदाउट एनी डिले यू कैन जस्ट डू द एक्शन। हमें करना क्या है, इसीलिए हमें मिलिट्री बोला गया है, डॉक्टर्स को। हम इन हाउस मिलिट्री हैं यहाँ की, तो हमें करना क्या है, वही चीज आज आपको मैं बताना चाह रहा हूं आशा होम्योपैथिक एकेडमी की ओर से। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकली मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली, नॉट मोर थ्योरेटिकली, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल की बात करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से बताना चाहूंगा कि कैसे सीपीआर परफॉर्म करते, किस स्टेप बाय स्टेप्स।
अच्छा, किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं बिल्कुल उसके आंसर दूंगा, क्योंकि बेसिक लाइफ सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है। आजकल हम कार्डियक अरेस्ट ज्यादा देख रहे हैं, और एज ए होम्योपैथ या एज ए फिजिशियन हम यदि क्लिनिक पर या कहीं और मरीज को देखते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये डॉक्टर हैं और ये कुछ तो करेंगे, हमारे मरीज के लिए कुछ तो करेंगे, यदि ये बेहोश है तो कुछ तो करेंगे। तो प्राइमरी एड देना जरूरी है टिल द एम्बुलेंस इज कमिंग एंड टिल द पेशेंट इज अलाइव। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली, है ना? यस, हाँ, अब बात करेंगे हम हाउ टू डू द एग्जैक्ट सीपीआर, दैट इज नोन एज आइडियल सीपीआर, दैट इज नोन एज हाई क्वालिटी ऑफ सीपीआर। इसको हाई क्वालिटी इसलिए बोला गया, कहीं भी दबा देना या किसी प्रकार से भी दबा देना सीपीआर नहीं। एग्जैक्ट रेट, एग्जैक्ट डेप्थ और एग्जैक्ट लोकेशन पे दबाना बहुत जरूरी है। लोग कहीं यहां दबाते हैं, कहीं यहां दबाते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन। इसीलिए आज ये क्लास इस बेसिस पे रखी है, इन चीजों के साथ में। आज आशा होम्योपैथिक एकेडमी में फिर से यामिनी मैडम और वैभव सर का बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा कि उन्होंने ये क्लास रखी और मतलब मुझे यहाँ बुलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, अब 2017 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने यह बोल दिया गया था कि सर्कुलेशन इज फर्स्ट। 2017 की गाइडलाइंस ये बोलती है कि पहले एबीसी था, अब ए का मतलब होता है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग, और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। उसने बोला कि यार एयरवे और ब्रीदिंग की इतनी ज्यादा और इतनी जल्दी जरूरत नहीं है। उसने बोला कि सी को पहले रखें, तो उसने बोल दिया बेसिक लाइफ सपोर्ट में सी इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट, नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी ब्लड में है और वो रहती ही है। तो क्या करें? ब्लड को वहां तक पहुंचाए जो टिश्यूज को जरूरत है। ब्रेन के टिश्यू है, फर्स्ट इज हार्ट, सबसे जल्दी जाता है ब्रेन फर्स्ट, एंड सेकंड इज हार्ट। बाद में किडनी, लिवर सब निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट, यदि ब्लड 4 मिनट से 10 मिनट तक ब्रेन को ब्लड नहीं मिला तो हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज, एंड फाइनली हार्ट इज पंपिंग नॉट गुड। तो क्या करना है? फर्स्ट इज सर्कुलेशन। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। सी ए बी की जगह रख दिया। सी मतलब सर्कुलेशन, ए मतलब एयरवे, बी मतलब ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब हम ब्रीदिंग देना चाहेंगे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? अब थोड़ा सा अल्गोरिदम की बात करें बीएलएस की, बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। कैसे करना है वो अल्गोरिदम पे ही चलना है अपने को। साइकिल है ये, एक साइकिल है, कैसे चलना है। सी, अब लिखा हुआ है कि अनरिस्पॉन्सिव। अनरिस्पॉन्सिव उसी मरीज का सीपीआर होगा जो अनरिस्पॉन्सिव है, जिसकी ब्रीथ नहीं चल रही है, जिसकी पल्स नहीं है, और वो अनरिस्पॉन्सिव, अनकॉन्शियस है। ये तीनों थंब रूल है सीपीआर के। You create that aha after that first consultation. That is the key here, right? So, ओके, तो हम सीखेंगे अनरिस्पॉन्सिव फर्स्ट, सेकंड जिसकी ब्रीदिंग नहीं है, सांस नहीं चल रही है, तीसरा जिसका ब्रीदिंग नहीं है, सांस नहीं है, अनकॉन्शियस है। चलिए, अनरिस्पॉन्सिव है, नो ब्रीदिंग लिखा हुआ है, नो नॉर्मल ब्रीदिंग, गैस्पिंग रेस्पिरेशन, इट मींस नो नॉर्मल ब्रीदिंग। गैस्पिंग का मतलब होता है लास्ट ब्रेथ, आपने देखी होगी। यस, क्या करना है इन लोगों में? एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। आपने जैसे ही देखा किसी मरीज को कि अनरिस्पॉन्सिव पड़ा हुआ है, नो ब्रीदिंग, नो पल्स, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, क्योंकि आप अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप खुद थक जाएंगे और बोलेंगे कि अब नहीं कर पाऊंगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट। फिर से मैं बोल दूं, गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स का मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति को गोल्डन आवर्स में, गोल्डन टाइम में बचाने की कोशिश करें। तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, इन कॉल फॉर हेल्प। तो एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स, गेट एईडी या डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर शॉक देने वाली मशीन, एम्बुलेंस साथ में लेके आती। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एडल्ट व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट से मरते हैं, और चिल्ड्रन, चाइल्ड में कभी भी कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है। चिल्ड्रन में रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण से कार्डियक अरेस्ट होता है, दिस इज कॉम्प्रोमाइज। ठीक है,
अनरिस्पॉन्सिव रहा, नो ब्रीदिंग, नो पल्स, गैस्पिंग रेस्पिरेशन, आपने देखा, फटाफट एक्टिवेट द इमरजेंसी की। अब पर्टिकुलर व्यक्ति को बोलो कि भैया काले शर्ट वाले व्यक्ति आप जो खड़े हैं वहां पर, आप जल्दी एम्बुलेंस बुलाएं या किसी को कॉल करें जल्दी। अब आपका यहां पर फोकस होना चाहिए, आप इधर उधर नहीं भागेंगे, किसी को बुलाने नहीं भागेंगे, किसी कार को लेने नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ वहां संभालना है। कैसे संभालना है? एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स हो गया, एईडी को लाने के लिए बोल दिया। एईडी मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, और डिफिब्रिलेटर ही लाना पड़े, वो उनके साथ में लेके आते हैं। यस, अब आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं है, गैस्पिंग रेस्पिरेशन है, एक्टिवेट कर दिया, पल्स नहीं है, डूइंग सीपीआर, डू सीपीआर, स्टार्ट सीपीआर। अब देखिए साइकिल पूरी है, अब एक एक चीजें देखेंगे यहां पर, पूरी साइकिल है। कैसे सीपीआर की साइकिल है? नाउ सी, सीपीआर किया कितनी, 30:2 पुश हार्ड एंड फास्ट, 30:2 पुश हार्ड एंड फास्ट, ध्यान से समझिएगा। पुश हार्ड एंड फास्ट, पुश हार्ड एंड फास्ट, पुश हार्ड एंड फास्ट। मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ अभी एल्गोरिदम समझिए आप ध्यान से, आराम से। चेक द रिदम, शॉक वो बात की बातें हैं जब एम्बुलेंस आ जाएगी या उसके साथ में एईडी आ जाएगा। डिफिब्रिलेटर में रिदम देखने की एक स्ट्रिप होती है, वो बता देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट द सीपीआर, पुश हार्ड एंड फास्ट, पुश हार्ड एंड फास्ट, पुश हार्ड एंड फास्ट। डेप्थ 2 इंचेस, 5 सेंटीमीटर, 2 इंचेस मतलब 5 सेंटीमीटर डेप्थ रख ली। प्रॉपर चेस्ट रिकॉइल, मैं आपको बता चुका हूं वीडियो में, प्रॉपर चेस्ट रिकॉइल एंड प्रॉपर वेंटिलेशन, 30:2 का रेशियो, 30 कॉम्प्रेशन 2 ब्रीथ, 30 कॉम्प्रेशन 2 ब्रीथ। ब्रीथ कैसे देंगे मैं बताऊं, हम आगे चलते हैं। अच्छा, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला है कि ये सब कुछ तो ठीक है भैया, ये तो इन हाउस हो गया या हॉस्पिटल में हो गया या कहीं गार्डन में हो गया, लेकिन कोई कार एक्सीडेंट हुआ या कोई मास कैजुअलिटी हुई, फैन बंद कर, शुभ नहीं। ट्रेन से ट्रेन टकराई, म्यूट कर लीजिए आप, शायद मैं निवेदन करता हूं कि आप म्यूट कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन होंगे मैं बिल्कुल दूंगा उसके आंसर, लेकिन अभी म्यूट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोलता है कि ये सब चीजें तो ठीक है, जब मास कैजुअलिटी होती है, ट्रेन से ट्रेन टकराती है, तो आपको यदि वहां मिला या कुछ भी, एरोप्लेन में भी मिल जाते हैं कई लोग, जब भी ट्रेन से ट्रेन टकराती है तो मास कैजुअलिटी होती है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? हो सकता है बिजली का पोल गिरा हो, बिजली का वायर गिरा हो, तो सीन सेफ्टी इज फर्स्ट। आप देखेंगे कि वहां हमारे लिए सीन सेफ है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन एसोसिएशन गाइडलाइंस में डाला है। सीन सेफ है या नहीं, यदि आप गए और वहां करंट से मर गए, क्या करेंगे आप? उस व्यक्ति को बचाने गए और हम ही मर गए, तो सीन इज सेफ फर्स्ट, देखना जरूरी है। रेस्क्यू सेफ्टी, रेस्क्यू सेफ्टी जरूरी है। किसको एचआईवी है, किसको ट्यूबरकुलोसिस है, किसके मुंह में मुंह डालने जाओगे आप? तो फर्स्ट रेस्क्यू सेफ्टी, आपके पास ग्लव्स होना चाहिए कार में। कार में एक मैं बताऊंगा पॉकेट मास्क होता है, वो होना चाहिए। आजकल माउथ टू माउथ ब्रीथ कोई नहीं देता है, क्योंकि सेक्रेशन आते रहते हैं, वॉमिटिंग आ गई या गंदा उसका सेक्रेशन आ रहा है, और किसको मालूम किसको क्या है, वी डोंट नो। तो एक पॉकेट मास्क आने लगा है, 200-300 रुपए का होता है, मैं आपको बताऊंगा वो डेमो में। ओके, तो रेस्क्यू सेफ्टी मतलब खुद की सेफ्टी फर्स्ट, मतलब सेफ्टी इज अ सीन सेफ्टी इज वन, सेकंड इज अ रेस्क्यू सेफ्टी मतलब हमारी सेफ्टी। चलिए आगे चलते हैं। असेस द अनरिस्पॉन्सिवनेस, सबसे पहले तो जेंटल शेक करना है आपको, यहां पे मारना है कि आप ठीक हो। अनकॉन्शियस व्यक्ति पड़ा है, आपने देखा, टैप द शोल्डर, शोल्डर को टैप किया आपने, यदि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आर यू ओके करके चिल्लाए, और उसके बाद कॉल फॉर हेल्प। अनकॉन्शियस है, सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प, ठीक है? कॉल फॉर हेल्प कर दिया। कॉल फॉर हेल्प करने के बाद में ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स को एडी दे रहा है, तो एडी बुलाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, इट्स ओके। कॉल फॉर हेल्प करने के बाद में आप चेक द पल्स। अब आजकल क्या होता है कि लोग हाथ में पल्स देखते हैं, नाड़ी यहां देखते हैं, यहां नहीं देखना चाहिए, एग्जैक्टली चेक करना चाहिए कैरोटिड पल्स, जो हार्ट के नियर होती है, वो जल्दी पिक करती है। मैं फिर से बता दूं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम। एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट, नॉट मिनट। मैं बता रहा हूं आपको, 4 मिनट के बाद में ब्रेन डेथ होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला है कि 10 सेकंड इज इंपॉर्टेंट। 10 सेकंड में आप एक्शन लेना चालू कर दीजिए, मतलब चेक द पल्स ओनली 10 सेकंड, स्विच ओवर 10 सेकंड, जो भी करना है 10 सेकंड के अंदर।
तो चेक द कैरोटिड पल्स, जस्ट ट्रेकिया के पास में आपको कैरोटिड पल्स मिलेगी, आपने अपनी गर्दन पर हाथ रखिए, यहां पर एक धड़कती हुई पल्स मिलेगी आपको, पल्सेशन। यदि वो है तो कुछ नहीं करना है, यदि नहीं है तो हमें क्या करना है, सीपीआर। सेम तरीके से कीप द हैंड टिल्ट बैक, यहां पर करके लोकेशन देखना है कैरोटिड की। नाउ चेस्ट कॉम्प्रेशन कब करना है ये उन्होंने बताया, व्हेन पल्स इज अब्सेंट फर्स्ट। आपका एक क्वेश्चन है कि चेस्ट कॉम्प्रेशन कब करना है, तो क्वेश्चन इज व्हेन द पल्स इज अब्सेंट, कैरोटिड पल्स इज, साइन ऑफ पुअर परफ्यूजन, साइनोसिस दिख रहा है आपको, नो अदर साइन ऑफ लाइफ, कॉफ, मूवमेंट्स, गैग रिफ्लेक्स नहीं लग रहा है, तो करना है। यस, एग्जैक्ट स्ट्रैट शोल्डर्स, देखिए एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, रेस्क्यूज की लोकेशन क्या है और विक्टिम की लोकेशन क्या है। नीचे जमीन पर लेटाना है, फर्म सरफेस होना चाहिए, ऊपर नीचे हमारे हाइट के अनुसार नहीं होना चाहिए। मैं फिर से आपको बताऊंगा डेमो में करके। तो चेस्ट कॉम्प्रेशन कैसे देना है, देखिए फिर से ध्यान रखिए, 5 पॉइंट आप अपनी पेन और कॉपी लेके लिख लीजिए, जो मैं बताऊंगा आप सामने अपनी पेन और कॉपी रखिए, उसमें लिखी है कि क्या करना है। प्लेस हैंड सेंटर ऑफ द चेस्ट, मैं बता चुका हूं पाम आपके कहा होना चाहिए, सेंटर ऑफ द चेस्ट। कीप आर्म स्ट्रेट एंड एल्बो लॉक्ड, ये मुड़ना नहीं चाहिए एल्बो। पुश स्टर्नम डाउन एटलीस्ट 2 इंचेस, 5 सेंटीमीटर। कितना दबाना है आपको, 2। कितना कॉम्प्रेशन की रेट से 1 मिनट में 100 से 120 बार दबे, इस रेट में चलना है, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से। कितना कॉम्प्रेशन देना है, 30:2। 30 का मतलब होता है 30 कॉम्प्रेशन देना है, 2 ब्रीथ देना है। कब तक, 5 साइकिल, 30:2 30:2 30:2 30:2 30:2। देन चेक द अगेन कैरोटिड पल्स, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही चीज करना है। अगेन चेक द कैरोटिड पल्स, नो पल्स, अगेन सीपीआर, 30:2 30:2 30:2 30:2। 5 साइकिल चेक द पल्स, 5 साइकिल चेक द पल्स, 5 साइकिल चेक द पल्स, कितना, 30:2 के। 2 का मतलब ब्रीदिंग, 2 बार ब्रीथ, 30 बार कॉम्प्रेशन। तो कितनी साइकिल बंडल, 5। 5 साइकिल के बाद अगेन चेक द पल्स। कब तक देना है, जब तक कि एम्बुलेंस आ नहीं जाती, या जब तक कि व्यक्ति उठ जाता नहीं, या थोड़ा सा मूवमेंट नहीं आ जाती, या लाइव। कंटिन्यू साइकिल 30:2। ओके, आप देख ली लोकेशन, स्ट्रेट होना चाहिए, मैं बताऊंगा आपको। गुड क्वालिटी चेस्ट कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन डेप्थ 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है, मैं बता चुका हूं पहले। कॉम्प्रेशन रेट एटलीस्ट 100 to 120 कॉम्प्रेशन होना जरूरी है, मैं बता चुका हूं पहले। ठीक है, दैट इज नोन एज गुड क्वालिटी चेस्ट कॉम्प्रेशन, नहीं तो फिर कहीं भी दबा दिया, कहीं भी हो गया। यस, नाउ चेक द एयरवे, मैंने बता दिया पहले सर्कुलेशन लिया गया है, देन एयरवे लिया गया है, देन ब्रीदिंग ली गई है। तो एयरवे देखिए, कुछ कुछ बच्चे हो सकता है कि फॉरेन बॉडी अटकी हुई है अंदर, तो एयरवे चेक करना जरूरी है, मुंह खोल के, कि कहीं सिक्रीशंस तो नहीं है, कहीं वॉमिटिंग तो नहीं है। एस्पिरेट कर लिया, खत्म हो जाएगा, एस्पिरेट इट मींस निमोनिया। ठीक है, हेड टिल चिन लिफ्ट करना है, किस तरीके से करना है वो प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा, लेकिन आप सिर्फ अभी जस्ट डायग्राम देखिए। एयरवे जस्ट जॉ थ्रस्ट व्हेन ट्रॉमा हेड एंड नेक, हाँ 2 चीजें होती है इसमें। जब किसी सस्पेक्टेड सर्वाइकल इंजुरी, आप देखते हैं बहुत सारे लोग आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में फंसे रहते हैं, बेचारे रोड पे पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, अभी इंदौर में ही देखा है, ऑटो में भर के उसको फटाफट ले आते हैं, किसी भी तरह से मुड़ के या मोड़ के पूरा गर्दन मोड़ देते हैं इधर उधर के, फटाफट उठाओ। वैसा नहीं करना चाहिए, कायदे से आराम से। सस्पेक्टेड इंजुरी में जॉ थ्रस्ट दी जाती है, आराम से हैंडल करके, या स्पाइन बोर्ड होने लगे हैं आजकल, तो स्पाइन बोर्ड आने लगे हैं, वैसे ला सकते हैं, या फिर एक इजी वे में आता है कि लॉग रोल करके ला सकते हैं, कि उसकी स्पाइन को मूवमेंट नहीं दिया जाए, इसलिए इसमें जॉ थ्रस्ट दी जाती है, इसको टिल्ट नहीं किया जाता। हेड टिल चिन लिफ्ट, जैसे पहले आपने देखा कि हेड टिल चिन लिफ्ट कर रहे हैं, यहां से गर्दन यू करके मोड़ी और हेड टिल चिन लिफ्ट किया, वो नहीं करना है। सर्वाइकल, सस्पेक्टेड सर्वाइकल इंजुरी में, बाकी लोगों में कर सकते हैं। यदि सर्वाइकल इंजुरी है कि हाँ इसको लगी हुई है, तो नहीं करना है, नहीं तो फर्दर डैमेज होकर क्वाड्रिपेरेसिस हो सकता है, क्वाड्रिप्लेजिया होकर व्यक्ति खत्म हो सकता है, क्योंकि सर्वाइकल इज वेरी सेंसिटिव पार्ट। नाउ टू रेस्क्यू ब्रेथ्स, हाउ टू डू द टू रेस्क्यू ब्रीथ्स, देखिए आप सीएनई टेक्निक के द्वारा, मैं एम्बू बैग के द्वारा यहां दिया जा रहा है, लेकिन माउथ टू पॉकेट मास्क भी दूंगा, माउथ टू माउथ भी दूंगा। यदि एम्बू बैग आपके पास है तो आजकल चलाना सीख लीजिए, मैं तो आपको ये बोलूंगा, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, एम्बू बैग चलाने में इजी है। वो आप विद इन
मिनट सीख सकते हैं। तो एम्बू बैग ज्यादा नहीं, 600-700 रुपए का आता है, वो अपनी कार में या गाड़ी में रखिए। एज ए फिजिशियन आपको पता होना चाहिए कि क्या करना। ओके, नाउ सी द रेस्क्यू ब्रीथ्स। रेस्क्यू ब्रीथ का मतलब होता है हमारी ब्रीथ जो हम लोग कर रहे हैं। यू रेस्क्यू ब्रीथ्स ईच लास्ट फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में देना है अपने को। इफ चेस्ट डज नॉट राइज ओपन द एयरवे बाय रिपोजिशनिंग द हेड। ओके, यदि आपका चेस्ट राइज नहीं हो रहा है, इफेक्टिव ब्रीथ होना चाहिए, सब चीजें इफेक्टिव है। यदि ब्रीथ सील पैक होना चाहिए, माउथ टू माउथ यदि दे रहे हैं, नहीं तो आधी यहां से निकल गई आधी अंदर गई, कोई मतलब नहीं है। वॉच फॉर चेस्ट राइज विथ एवरी रेस्क्यू ब्रीथ। आपको देखना है कि चेस्ट राइज हो रहा है नहीं हो रहा है। अनकॉन्शियस में 100% चेस्ट राइज होता है, हम लोग करते हैं। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद में आएगा, मैं आपको बताऊंगा रेस्क्यू। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये एईडी अभी तक हमने बात करी थी। अब मैं चलते हैं अपन, ये तो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की बात थी, अब थोड़ा सा चेन ऑफ सर्वाइवल की बात करते हैं। सर चेन चेन ऑफ सर्वाइवल, चेन ऑफ सर्वाइवल अभी तक हमने बात करी CAB। ओके, सर्कुलेशन 1, सर्कुलेशन 1, सर्कुलेशन फर्स्ट, ब्रीदिंग, CAB एयरवे एंड ब्रीदिंग। ओके, अब थोड़ा सा मैं यहां बताना चाहूंगा आपको कि यस, आप एक एक चीजें ध्यान से समझिएगा। अभी मैं बता चुका कि बहुत सारे लोग, 7 लाख लोग विदाउट मतलब कमी की वजह से, नॉलेज की कमी की वजह से कार्डियक अरेस्ट से मर जाते हैं, या कार्डियक अरेस्ट से मरते हैं। ब्रेन डैमेज हो सकता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचे तो, ये सब कुछ बता चुका हूँ। ये कारण है कार्डियक अरेस्ट के। अब चेन ऑफ सर्वाइवल की आप बात करें, अब चेन ऑफ सर्वाइवल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। सेकंड से इंपॉर्टेंट है तो चीज भी इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, फर्स्ट अनकॉन्शियस हुआ मरीज, कॉन्शियस अनकॉन्शियस मरीज आपने देखा, वहां सिनेरियो में आपने देखा, आप गए वहां पर, तो क्या करना है, अर्ली रिकॉग्नाइज। अर्ली रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, आपको समय नहीं बिगाड़ना है। 10 सेकंड, 10 सेकंड जितनी भी चीज करना हो, कैरोटिड देखना हो 10 सेकंड, सीपीआर का एक्शन लेना हो 10 सेकंड, कि हमें एक्शन लेना है कि सीपीआर करना ही है। यस, अननेसेसरी सीपीआर इज नॉट हार्मफुल टू द बॉडी। यदि एक साइकिल या एक बंडल आपने सीपीआर कर दिया तो कोई हार्म नहीं है बॉडी। सीपीआर इज मस्ट, ये सिर्फ ध्यान रखिए। अर्ली रिकॉग्नाइजेशन, कॉल फॉर हेल्प, ये जरूरी है। अर्ली रिकॉग्नाइज किया, मरीज लेटा हुआ है, पल्स नहीं मिली, रिकॉग्नाइज अर्ली करना है तुरंत, अभी की अभी किया। अर्ली सीपीआर, ये फिर से मैं बता रहा हूं, सीपीआर इज मस्ट। तो अर्ली सीपीआर, अर्ली रिकॉग्नाइज किया, अर्ली सीपीआर किया, अर्ली डिफिब्रिलेटर, ये भी जरूरी है। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं कि कार्डिक अरेस्ट कैसे होता है, इस टाइप से चल रहा है हार्ट, पंपिंग नहीं जा रही है, तो वहां पे डीफिब आके क्या करेगा, दैट इज ओनली द। फिर से क्या होगा, आप आर्टिफिशियल तो कर रहे हैं लेकिन इफेक्टिव सीपीआर नहीं हुआ, तो अगेन सेम थिंग, ब्रेन हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज। तो अर्ली रिकॉग्नाइजेशन फर्स्ट, अर्ली सीपीआर 2, अर्ली डिफिब, और पोस्ट रिसस्टेशन केयर, ये सब कुछ करने के बाद में डिफिब उन्होंने कर दिया, पोस्ट रिसस्टेशन केयर, फिर टू रूल आउट कि क्या कारण था कार्डिक अरेस्ट का। ठीक है, यस, ये मैं बता चुका हूं एल्गोरिदम कैसे आपको चलना है। कंटिन्यू सीपीआर साइकिल एल्गोरिदम, अमेरिकन हार्ट स्टेप बाय स्टेप। सेफ्टी, सीन सेफ्टी, कार, ट्रक, ट्रक टू ट्रक, जो भी है, मल्टीपल हो सकते हैं, मास कैजुअलिटी हो सकता है, तो ये चीजें उसने बताई है थोड़ा सा आपको। इसमें बताया गया कि अनस्टेबल सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन इज मस्ट, क्योंकि इंजुरी टू द सर्वाइकल स्पाइन इज वेरी डेंजरस। फिर से मैं बता दूं आपको, असेस द रिस्पॉन्स, फर्स्ट टैपिंग द शोल्डर, टेक अ स्टेप। यदि अनरिस्पॉन्सिव पड़ा है तो क्या करना है, टैप द शोल्डर। इफ देर इज अ पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प। कोई आओ, जल्दी आओ, या किसी एम्बुलेंस को बुलाओ, सीधा बोलना है, टॉप एकदम टैग करके बोलना है कि काले शर्ट वाले जो भैया है वो खड़े हैं, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। वो टैग करेंगे, क्योंकि दिस इज ऑल टीम वर्क। मैं सीपीआर कर रहा हूं, वो टीम बुला रहे हैं, दूसरा आके वेंटिलेट करेगा। ठीक है, तो दिस ऑल ऑफ द टीम वर्क, ये होता है। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ आम आदमी को सीपीआर आना जरूरी है। तो जब तक फिजिशियन नहीं जान पाएंगे तो आम आदमी कैसे जान पाएगा। मेरी क्लिनिक पे मैं जब वेटिंग हॉल में बैठा रहा था, एक बंदे को खड़ा करके रखा है, तो सीपीआर सीखा, जब तक वेटिंग हॉल में व्यक्ति उन लोगों को देखेंगे जब तक मैं अंदर मरीज देख रहा हूँ। तो वो बंदा सिर्फ एक ही काम करता है कि इन लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिर्फ इतना जानना चाहिए कि चेस्ट को दबाना कैसे, बस इतना करना। ठीक है,
एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स बता चुका हूं, चेक द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इज फर्स्ट। फिर से मैं बताऊं, हार्ट रुका हुआ है, पंपिंग एंड वाइटल ऑर्गन्स अचीव द ब्लड प्रॉपरली टू डैमेज द परमानेंटली। सीपीआर, पोजीशन ऑफ रेस्क्यूज, देखिए रेस्क्यूअर्स की पोजीशन क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं उसमें। चेस्ट कॉम्प्रेशन कहां देना है, कैसे देना है, डोमिनेंट हेड कहां रखना है आपको, इंटरलॉकिंग करके कितना दबाना है, ये सब चीजें मैं आपको और बताऊंगा अपने डमी पे कर कर। सिर्फ आप छोटा छोटा है, देखिए हाँ, अब आप, मैं जो पेन और कॉपी बोला था आपको, यदि आपके सामने रखी हुई हो तो एक बार आप ये सब चीजें लिख लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर स्किल्ड प्रोसीजर होती है, ये एक बार में नहीं समझ में आएगी, आप जब बार बार देखेंगे तब जाके आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ सीख पाया। दिस ऑल आर द स्किल्ड। जितना आप इसमें रमेंगे, जितना मंजेंगे, तब जाकर आपको ये चीज समझ में आएगी। तो आज आपने ये बेड़ा उठाया है कि हमें सीपीआर सीखना है, तो बिल्कुल आप सीखेंगे। पुश हार्ड एंड फास्ट, पहले भी वो वीडियो बोल चुका है, मैं भी बोल रहा हूं, पुश हार्ड एंड फास्ट। 100 to 120 कॉम्प्रेशन पर मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 सेकंड में 2 बार दबना चाहिए चेस्ट, 1 2, तो 2 बार दबे तो कितना मिलेगा, 60 मिनट में, 60 सेकंड में 120, तो 100 to 120। ठीक है, कॉम्प्रेशन डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 2 इंचेस, 2 इंच, इट मींस 5 सेंटीमीटर। रिलीज कंप्लीटली टू अलाउ द चेस्ट टू फुली रिकॉइल, मैं बता चुका हूं, यदि आपने वहीं के वहीं दबाया तो इट इज नॉट इफेक्टिव सीपीआर। अगेन सेम, पुश रिकॉइलिंग, पुश रिकॉइल, पुश रिकॉइल। compression ventilation ratio is a 30:2, 30:2, 30:2. Do not bounce your hand up and down on the victim chest, ऐसा नहीं करना है, बाउंसिंग नहीं करना है। ठीक है, आपने एक जगह रख दिया बिटवीन द निप्पल लाइन, आपने वहां रखा, उसके बाद आपको इधर उधर हटाना नहीं, सेम चलने देना है। नेवर यूज palm ऑफ योर हैंड्स, यूज द हील, ये जरूरी। ओके, नेक्स्ट। When two more rescues available, मैं आपको बताऊंगा 30:2, तो 2 मिनट्स में क्या करना है। एडवांस एयरवे में क्या करना है, एडवांस एयरवे का मतलब कि एंडोट्रेकियल ट्यूब जो हम आईसीयू में करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब, कॉम्बी ट्यूब, लेरेंजियल मास्क एयरवे, ये अलग अलग एडवांस एयरवे, उसमें भी 30:2 का रेशियो चलता है सेम। रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन, ठीक। हाँ, अब एयरवे ओपनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसमें एयरवे ओपनिंग कैसी करना है। देखिए, एज ए फिजिशियन हमें सब आना चाहिए। यदि हम होम्योपैथ है तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमें तो कुछ मालूम नहीं है, हमको तो सिर्फ मटेरिया मेडिका और रेपेटरी का ज्ञान, ऐसा नहीं है सर। मैं आपको बताऊं, एज ए फिजिशियन सामने एक्सपेक्टेड जो पेशेंट है, वो हमें एक्सपेक्टेशन ये रखता है कि इनको तो सब आता है, ईसीजी भी आता है, एक्सरे भी आता है, सब कुछ आता है। तो हमें सभी चीजों में स्किल्ड होना जरूरी है, तभी जाके हम एमबीबीएस एमडी से आगे पहुंच पाएंगे, मैं आपको ये बता दूं। हाँ, एयरवे, ओपन द एयरवे कैसा, जॉ थ्रस्ट मैनुअर, जॉ थ्रस्ट मैन्युअर किसमें, सर्वाइकल, सस्पेक्टेड सर्वाइकल इंजरी में। कैसे करना है, जब ये जॉ को, एंगल को पकड़ के ऊपर से उठा देना है, तो उसका एयरवे खुल जाएगा, क्योंकि अनकॉन्शियस व्यक्ति में टंग फॉल होने के कारण से एयरवे रुक जाता है, तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। सेकंड इज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, नो ब्लाइंड फिंगर्स इन स्विप, आपको किसी भी व्यक्ति में अंदर मुंह में उंगली डाल के नहीं घुमाना है, या पानी नहीं पिलाना है। यह स्ट्रिक्टली आप ध्यान रखिए, कोई अमृत नहीं है, कोई जल्दी बच नहीं जाएगा व्यक्ति। यदि उसने एस्पिरेट कर लिया, लंग्स में उतर गया, तो कैन लीड टू निमोनिया, एंड निमोनिया कैन लीड टू सेप्सिस, एंड सेप्सिस कैन लीड टू वेंटिलेटर, कैन लीड टू डेथ। फिर से मैं बोल रहा हूं, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, मुंह में उंगली नहीं डालना है, फर्स्ट। मुंह में चम्मच नहीं डालना है, 2। मुंह में किसी तरीका का कोई लिक्विड नहीं डालना है, 3। ओके, नेक्स्ट। हाँ, एक थोड़ा सा अपन आउट ऑफ वे जाते हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसे किसी व्यक्ति को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, डेट इज नोन एज चोकिंग, चोक करना। चोकिंग का एक साइन होता है कि उसको सांस लेने में बहुत परेशानी होगी, सिक्का अटक गया, हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं। सिक्का अंदर अटका हुआ है, कहां पर, जस्ट वोकल कॉर्ड पे, वोकल कॉर्ड पैक है, क्या करेंगे,
इस टाइप का एक हेमलिक मैन्योर होता है। हेमलिक मैन्योर में आपका जो हैंड होता है, ये जो हैंड होता है वो यहां पर जीपर्ड प्रोसेस, जो आपका ब्रेस्ट बोन होता है, ब्रेस्ट बोन के नीचे वाला जो प्रोसेस होता है वहां पर अटके के पीछे जाके जोर से दबाना है उसको, सडनली सिक्का बाहर आ जाएगा। तो ये विद इन, नहीं तो क्या होगा, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। फिर से मैं बताऊं, कार्डियक अरेस्ट का एक कारण है हाइपोक्सिया, एनॉक्सिया, वहां मर जाता है। आप सीएडी वेडी तो छोड़िए कि कार्डियक अरेस्ट उससे आया था, कार्डियक अरेस्ट में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यदि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है हार्ट को, ब्रेन को, कैन लीड टू ब्रेन डैमेज। अब बहुत सारे रेस्क्यूज है, ऐसा बोला जाता है कि माउथ टू माउथ ब्रीथ भी दे सकते हैं, माउथ टू बेरियर ब्रीथ भी दे सकते हैं, माउथ टू नोज ब्रीथ भी दे सकते हैं, माउथ टू विथ बैग मास्क वेंटिलेशन में बताऊंगा, बैग मास्क से भी दे सकते हैं, वेंटिलेशन विथ टू एडवांस एयरवे। ये है माउथ टू मास्क वेंटिलेशन, ठीक है। अर्ली डिफिब्रिलेटर मैंने बता चुका हूं, अर्ली डिफिब कैसे करना है। ये आजकल एयरपोर्ट जहां पब्लिक प्लेस होती है, एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन, वहां पर ये एक एईडी नाम की मशीन होती है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। यदि आपका हार्ट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, आम व्यक्ति नहीं समझ पाएगा लेकिन हम फिजिशियन समझ पाएंगे कि हार्ट इस तरीके से धड़क रहा है, उसको अरेस्ट बोला जाता है। तो ये क्या करेगा, वहां जाके शॉक दे देगा, फिर क्या करेगा, हार्ट अपनी रिदम आने की, पकड़ने की कोशिश करेगा, और क्या होगा, चालू हुआ, पल्स आ गया, हमको कुछ नहीं करना। इसलिए मैं बोल रहा हूं अधिकतर एडल्ट जो आते हैं वो कार्डियक अरेस्ट से ही खत्म होते हैं, और चाइल्ड इज रेस्पिरेटरी अरेस्ट, चिल्ड्रन में कभी भी कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। कहां कहां लगाना है, एक आगे लगा सकते हैं, एक पीछे लगा सकते हैं, लेकिन एडल्ट में आपको एक फ्रंट में और एक पे, वो पैड आते हैं एईडी वाले, वो वहां के एक्सपर्ट लोग लगाते हैं, कोई बात नहीं। उधर अपन तैयारी कर लेते हैं। तो समराइज करूं मैं आपको कि बेसिक लाइफ सपोर्ट में हमें क्या क्या अभी देखा। चेन ऑफ सर्वाइवल मैं बता चुका हूं कि चेन ऑफ सर्वाइवल क्या था, एक बार फिर से आप रिवीजन कर लें। अर्ली रिकॉग्नाइजेशन, अर्ली चेस्ट कॉम्प्रेशन, अर्ली सीपीआर, अर्ली डिफिब्रिलेटर मतलब एईडी। आप कोई बात नहीं, यदि एईडी में तकलीफ हो रही है, आईडी लाने में तकलीफ हो रही है, तो आप सीपीआर करते रहे, कुछ मत करिए, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज मोर। यदि आप सीपीआर कर रहे हैं तो चांसेस है कि वो व्यक्ति बच जाएगा। यदि आप सीपीआर नहीं कर रहे हैं उसके कंपेयर में, तो हमेशा ध्यान रखिए बीएलएस में चेन ऑफ सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट। अर्ली रिकॉग्नाइज, जैसे वी आर कीन ऑब्जर्वर, जल्दी रिकॉग्नाइज किया, जल्दी सीपीआर दिया, जल्दी डीफिब दिया, एंड अर्ली प्राइमरी एड, हॉस्पिटल ले गए, बस। आप कुछ नहीं करना है। आप, मैं बता दूं आपको कि जब दिल को कब अच्छा लगता है, मन को कब अच्छा लगता है, जब अपनी वजह से कोई व्यक्ति बच जाता है, तो बहुत बड़ी एक फीलिंग आती है अंदर से कि यार आज तो क्या बात है, आज तो एनर्जी से भरा हुआ। तो सिर्फ मेरा निवेदन यह है कि हर चीज का अपना एक इंपॉर्टेंट होता है, कि हर स्टेप्स का एक इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समराइज करके बता रहा हूं, 20 मिनट आप मेरे साथ रहिए, बस 20 मिनट में आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं डमी पर कि कैसे हमको बीएलएस के स्टेप बाय स्टेप करना है, किस तरीके से करना है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आपके पास रहेंगे। So guys, if you have any question, you can just write down in the chat box. I hope you're enjoying. Okay, we have a question. So I will just let Dr. Vineet take that question. But I hope आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है और सीखने को भी मिल रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज है जो हम सबको आनी चाहिए। दिस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। And I hope there is general public also. So it is not only important for physicians like Dr. Vineet said कि ऐसा जरूरी नहीं है जब आप एक किसी व्यक्ति की जान बचाते हैं तो आप एनर्जी से भर जाते हैं, आपको लगता है कि आपने कुछ किया है, और उससे बड़ा कोई, मतलब उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। तो अभी
एक 2 मिनट, लेस देन 2 मिनट्स आप लोग हमें दीजिए, सो दैट हम अरेंज कर पाए, एंड डॉक्टर विनीत विल शो यू प्रैक्टिकली हाउ टू गिव CPR, which is very 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 important. स्टार्ट। यस, अब आपको मैं इस डमी पे, इस पुतले पे, इस डॉल पे मैं आपको एक सेशन करके बताऊंगा कि एक सिनेरियो है। आपको मैंने लिखा कि एक 45 years old male had suddenly collapsed on ground। गार्डन में टहल रहे थे, टहलने के बाद में सडनली गिर गए नीचे। अब वो कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि उनको वेजोवेगल, वो वेजोवेगल का मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए चक्कर आए और गिरे हों, या फिर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर झटके हो सकते हैं। तो झटके तो दिखेंगे, लेकिन कुछ साइलेंट झटके होते हैं जो चलते रहते हैं अंदर, वो नहीं दिखते हमें। तो हाउ टू असेस? यू आर द पर्सन, यू आर द मेडिकोस, यू आर द पैरामेडिक्स। तो हमें कैसे असेस करना है उस चीज को कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली उस सिनेरियो को मैं समझा रहा हूँ कि मैं भी टहल रहा हूँ, वो भी टहल रहा है, वो सडनली गिरे। अब मैंने देखा कि यार क्या हुआ है। अब रियल वर्ल्ड में तो एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं आज ये आपको स्किल करना चाह रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड को भी उसी तरीके से समझिएगा जैसे आज है। तो एग्जैक्टली वो गिरे नीचे, गिरने के बाद क्या हुआ, अनकॉन्शियस हो गए। आपने देखा सबसे पहले आपको क्या करना है, सीन इज सेफ और नॉट। हो सकता है वहां पे तार के करंट से वो लग के नीचे गिरे हो, आपने बाद में आके देखा उसको। मैं नहीं देख रहा था, दूसरी बार आके देखा। तो आपने देखा जब तार का करंट, करंट का तार लगा हुआ है वहां उनके आसपास, हाथ, तो आप हाथ लगाएंगे तो हम रहेंगे। सीन इज सेफ और नॉट, फर्स्ट अवर सेफ्टी, खुद की सेफ्टी होना जरूरी है। देन चेक द रिस्पॉन्स, यदि सब कुछ सीन इज सेफ, सीन सेफ है तो आपको कुछ नहीं। फर्स्ट टू चेक द रिस्पॉन्स, हाउ टू चेक द रिस्पॉन्स? फर्स्ट चेक द शोल्डर, टैप द शोल्डर। भैया आप ठीक हैं, भैया आप ठीक है। यदि वो रिस्पॉन्स नहीं करते तो क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प। आप अकेले व्यक्ति, फिर से मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं कर सकते, कॉल फॉर हेल्प, भैया आप जल्दी एम्बुलेंस लाइए, भैया आप जल्दी ये करिए। देन चेक द पल्स, नॉट रेडियल, चेक द कैरोटिड पल्स, जस्ट ट्रेकिया के पास में, 2 उंगली नीचे इस साइड में, दोनों तरफ देख सकते हैं, दोनों तरफ कैरोटिड है। यदि पल्स नहीं मिल रही है तो क्या करना है, रिज्यूम CPR विदाउट डिले। फिर से मैं बता रहा हूं, विदाउट डिले। ये इंटरलॉकिंग, ये किया, डोमिनेंट हार्ट आपका ऊपर आया, आप 90 डिग्री में उनके पास खड़े हो गए, जस्ट विजिट सरफेस पर, हैंड आपका कहां गया, उनकी ब्रेस्ट बोन पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 कॉम्प्रेशन एंड 2 ब्रेथ्स। तो 2 ब्रेथ्स को क्या करना है, आजकल माउथ टू माउथ कोई नहीं देता है, क्योंकि कभी सिक्रीशंस आ गए, कोई TB है किसी को HIV है। तो हमें क्या करना है, ये जो मास्क आजकल आने लगे, मैंने आपको बताया था वीडियो में वहां पर कि 200 से 300 रुपए का एक पॉकेट मास्क आता है। ये 1 वे मास्क है, मतलब हमारी एयर उसमें जाएगी, उसकी एयर या सिक्रीशन हमारे पास नहीं आएगी। तो ये बहुत ब्यूटी है कि उसका ब्रीथ, मतलब हमारा ब्रीथ उसमें जाएगा, उसका ब्रीथ हम में नहीं आएगा। तो चांसेस ऑफ जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 ब्रेथ्स, ये लगाया, सील किया माउथ को, हेड टेल चिन लिफ्ट करना जरूरी है, क्योंकि टंग फॉल होने के कारण से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। 1 2 ब्रेथ्स, स्टार्ट CPR 1 2 3 4 5 6 7, 2 ब्रेथ्स CPR, 2 ब्रेथ्स CPR, 2 ब्रेथ्स, कितना, 5 साइकिल। अब थोड़ा सा आप समझिएगा कि CPR कैसे देना है। उन्होंने बोला पुश हार्ड एंड फास्ट, कैसा पुश एंड फास्ट, पुश हार्ड एंड फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, push hard and fast, depth 2 inches, depth 2 inches, कितना, 1 2 3 4, कितनी डेप्थ जा रही है, 2 inches एटलीस्ट।
2 इंचेस आपको दबाना है क्योंकि हार्ट वही है, तो ही पुश हो पाएगा। यदि आपने यूं दबाया, नथिंग। यदि आपने यहां रख के दबाया, गलत है। यदि आपने यहां दबाया, पेट को दबाया, गलत है। तो फर्स्ट, पुश हार्ड एंड फास्ट। सेकंड, 2 इंचेस डेप्थ। थर्ड, 100 to 120 कॉम्प्रेशन पर मिनट के रेट से आपको चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So 30 compression, then 2 breaths. 1, 2. चेस्ट कॉम्प्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर चेस्ट राइज होना चाहिए, सील पैक होना चाहिए माउथ पे। ये भी आपको ध्यान रखना है, भले एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है। सेकंड, थर्ड हो गया। फोर्थ इज अ प्रॉपर चेस्ट रिकॉइलिंग। हमने बताया था वीडियो में कि आपको चेस्ट रिकॉइल करना है, ये करना गलत है। वही कभी क्या कर दिया आपने, ये कर दिया प्रॉपर चेस्ट रिकॉइल। 1, 2, 3, 4, 5। प्रॉपर चेस्ट रिकॉइलिंग इज मस्ट एंड मिनिमल इंटरप्शन। मतलब आपको 5 साइकिल के बाद ही 2 ब्रीथ देना है। ऐसा नहीं कि 3 साइकिल कर दिया, 1, 2, 3, 4, 30, 2 ब्रीथ, 30, 2 ब्रीथ, 30, 2 ब्रीथ, 3 साइकिल करके रुक गए। रुकना नहीं है। इसलिए बोला गया है कि आप अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते, दूसरे का होना जरूरी है। 5 साइकिल के बाद मैं खुद थक जाऊंगा, तो जो हाई क्वालिटी ऑफ सीपीआर है वो नहीं जा पाएगा। इसीलिए बोला गया हाई क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ सीपीआर कभी बिगड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला है मिनिमल इंटरप्शन। इंटरप्ट नहीं करना है। ये किया, ये किया, ओके। अब नाउ दैट इज नोन एज बैक मास्क वेंटिलेशन। माउथ टू माउथ ब्रीथ नहीं देना है आपको। एक पॉकेट मास्क खरीदिए, अपने कार में रखिए। इसी के साथ में आप एक एम्बू बैग खरीदिए। एम्बू का मतलब होता है AMBU, AMBU, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। आर्टिफिशियल है, मैनुअल है, ब्रीदिंग यूनिट है। तो आपने क्या किया, 30 कॉम्प्रेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 2 ब्रेथ्स। हेड टिल चिन लिफ्ट, ये गए 1, 2, 30 कॉम्प्रेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 2 ब्रेथ्स विद एम्बू बैग। हमेशा ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन लगाना ही जरूरी है, हॉस्पिटल में ही काम किया जाता है, ऐसा नहीं है। इसका रोल बाहर भी हो सकता है। 21% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है। 21% ऑक्सीजन इसमें लेके आपने जो इसमें डाली है वो 21% जाएगी, और हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा 4% यूज करती है। उसके बाद बाकी सब डेड स्पेस के द्वारा बाहर निकाल देती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि समय इज इंपॉर्टेंट, नॉट एग्जैक्टली कि आप क्या कर रहे हैं। समय जल्दी पिक करना, जल्दी पिक करके रिकॉग्नाइज सीपीआर देना। सीपीआर देने के बाद में तुरंत आपको टीफिप लाना, टीफिप लेने के बाद में आपको इधर। अच्छा, इसमें एक और बताया गया है, यामिनी मैडम, मैं कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा कि व्हाई अवॉइड द हाइपर वेंटिलेशन। अभी लोग हड़बड़ी में क्या कर देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर हम रुकेंगे बिल्कुल, क्योंकि कमेंट बॉक्स में उन लोगों का जानना जरूरी है जो लोग अभी सुन रहे हैं। तो उन लोगों का कमेंट्स में मैं एक क्वेश्चन यहाँ से दे रहा हूँ, वो आंसर उधर से लिख के भेजेंगे या वो आंसर बताएंगे कि व्हाई अवॉइड द हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब होता है 2 से ज्यादा आप ब्रीथ दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्योंकि क्या है, हड़बड़ी में वहां कुछ समझ में नहीं आता है, आप कुछ भी कर जाते हैं। तो व्हाई अवॉइड हाइपर वेंटिलेशन। आपको ज्यादा हाइपर वेंटिलेट क्यों नहीं करना है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने क्यों बोला है कि 30:2 का ही रेशियो रखना है। उन्होंने क्यों नहीं बोल दिया कि 30:6 का रेशियो रखना है या 30:10 का रेशियो रखना है। आप ज्यादा ऑक्सीजन देके क्या मरीज को बचा लेंगे। व्हाई अवॉइड द हाइपर वेंटिलेशन। मैं निवेदन करता हूं कि आप अपनी कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं। कमेंट्स लिखें कि क्यों हाइपर वेंटिलेशन अवॉइड करना है हमें। इस एडल्ट सीपीआर में हमें ज्यादा सांसें क्यों नहीं लेनी उस व्यक्ति को। सांसें जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो अच्छा ही होगा ना, खराब क्यों होगा। किसी का आया कमेंट। यूरोथोरेक्स और लंग डैमेज।
न्यूमोथोरेक्स एंड लंग डैमेज, पर मैडम ठीक है, ओके, इट्स ओके, हो सकता है पर लेस चांसेस, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो बनी हुई है 1.5 लीटर की, और लंग का जो टाइडल वॉल्यूम होता है 450 ml होता है, तो इतना ही बना हुआ है। यदि ये आप इन्फेंट में चला देंगे ये बैग, या किसी चाइल्ड में चला देंगे तो वो फट जाएगा, बिल्कुल फट जाएगा। यस, दूसरा क्या है सर? दूसरा क्या है? बिल्कुल, न्यूमोथोरेक्स और लंग डैमेज causes intrathoracic pressure and decreased cardiac output, exactly, बिल्कुल सही बात है। सोंजियस सरकम, देखो बिल्कुल सही बात बोली आपने, फिर से मैं उस लॉजिक को यहीं पर समझाता हूँ। causes intrathoracic pressure is high and decreased cardiac output because, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यदि आपने एज ए फिजिशियन, हमें सब ये मालूम होना चाहिए कि कैसे करना है। Why avoid the hyperventilation? एग्जैक्टली सही बताया उन्होंने कि हमें 2 ब्रेथ ही देना है, 1 and 2। अवॉइड हाइपरवेंटिलेशन विद एडवांस एयरवे एंड बेसिक एयरवे, दोनों में एक ही नियम लागू होता है कि सिर्फ आपको हाइपरवेंटिलेट नहीं करना है। हड़बड़ी में बहुत लोग क्या करते हैं, ये नहीं करना है, बिकॉज, ध्यान से समझिएगा, सही बोला सर ने, इंट्राथोरेसिक प्रेशर इज हाई, आपने अंदर पूरी एयर भर दी, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ा, वीनस रिटर्न कम हुआ, वीनस रिटर्न कम हुआ तो क्या हुआ, कार्डिक आउटपुट कम हुआ, और अपना मेन एम क्या था सीपीआर देने का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अचीव द वाइटल ऑर्गन टू प्रिवेंट द डैमेज, फर्दर डैमेज। तो एग्जैक्टली इंट्रासोनिक प्रेशर हाई, वीनस रिटर्न लो, कार्डिक आउटपुट लो, और हमारा मेन एम था कि कार्डिक भरा नहीं, कार्डिक फील नहीं हुआ, और हमारा आउटपुट कम निकला, कम हुआ तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम पहुंची, और ये तो दैट इज ओनली द सिनेरियो कि हमें करना क्या है। फिर से एक बार बता दूं, पुश हार्ड एंड फास्ट 1, सेकंड इज अ 30:2 रेशियो ओनली एन एडल्ट, नॉट इन चाइल्ड, चाइल्ड का बात की बात है, लेकिन अभी एडल्ट की बात है। 30:2, डेप्थ 2 इंचेस, इट मींस 5 सेंटीमीटर इन एडल्ट, इतना होना चाहिए। प्रॉपर चेस्ट रिकॉइलिंग, एंड लास्ट इज अवॉइड हाइपरवेंटिलेशन। हमें सिर्फ यही 5 से 6 स्टेप्स, थंब रूल है, वो ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं है। तो बाकी चीज, थैंक यू बाबा सर, यामिनी मैडम। Thank you so much. That was amazing to see कि how to do it practically. I hope it got very clear. आप सब लोगों के लिए बहुत ही क्लियर हो गया है कि CPR कैसे करना है, क्या सिम्टम्स देखना चाहिए, और कब करना है, कितना करना है, व्हाट इज द रेशियो, क्या नहीं करना है, सो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, both the things are very very clear. And if you still have any questions, we will be happy to take those questions. आप अपने question chat box में लिख सकते हैं, and Dr. Vineet would be more than happy to get questions. Yeah, so one question is from Dr. Lipi. She's asking 30 compressions and 2 breathing. What is the meaning of 5 cycle? 5 cycle matlab? Exactly. Wait, it means 30:2, 30:2, 30:2, 30:2, 30:2. That is the only 5 cycle. 30:2 1 cycle, 30:2 2 cycle, 30:2 3 cycle, 30:2 4 cycle, 30:2 5 cycle. It means 5 cycle मतलब यही। इसके बाद आपको क्या करना है, टू चेक द कैरोटिड ओनली, देन देर इज नो पल्स, रिज्यूम CPR अगेन, सेम 30:2, 30:2, 30:2, 30। इस बीच में आपको नहीं रुकना है, इसीलिए बोला गया है मिनिमल इंटरप्शन। उन्होंने एक प्रोटोकॉल बांध दिया है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कि 5 साइकिल ही देना है। अच्छा हाँ, दूसरा ये डिफिब्रिलेटर आ गया कि 3 साइकिल में डिफिब्रिलेटर आ गया, तो उन्होंने बोला गया वहां पे अर्ली डिफिब्रिलेट, यदि डिफिब आ गया तो आपको 30 बार तो दबाना ही, रुकना नहीं है 15 बार में। आप 15 बार में डिफिब आ गया, 1 2 3 4 5 सर डिफिब आ गया, वो डिफिब्रिलेटर की तैयारी करेगा, AED की तैयारी करेगा, पैड वगैरह चिपकाएगा, आप अपने आप चलने दीजिए CPR। 30 होने के बाद ही आप छोड़िए, देन असेस द पल्स एंड चेक द।
एक मैं रिदम लेके आया हूँ, यदि मैडम यदि लोग रुके हुए हैं तो एक रिदम है मेरे पास, अलग अलग रिदम्स है, कैसे पहचानेंगे अपन की कौन कौन सा ये है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ में। प्लीज प्लीज जब शेयर। तक कोई क्वेश्चन और हो तो बता दीजिए। जी, एक और क्वेश्चन है। डॉक्टर दीपा इज आस्किंग, till how long can we do CPR in case help arrives late or there is no one to help call help? एग्जैक्टली कब तक हमें सीपीआर करना है? जी, मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है कि हमें सीपीआर तब तक करना है जब तक कि प्राइमरी एड या एम्बुलेंस नहीं आ जाती, एक, और दूसरा जब तक कि पेशेंट की पल्स नहीं आ जाती। ये दो थंब रूल है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ में एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस ने अंदर ट्यूब डाला, ट्यूब डाल के वो ले गए सीपीआर करते हुए, वो हमसे ज्यादा स्किल्ड है, अब वो कर लेंगे। लेकिन आपने एड में, हमारा जो टॉपिक था आज सुबह का कि प्राइमरी एड, नॉट इन डिटेल, मैं डिटेल पढ़ाना चाहूं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि अभी तो हमें हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज होने से बचाना है। तो क्या करना है प्राइमरी एड में? सिर्फ इतना ही करना है आपको कि सिर्फ इतना सीपीआर तब तक करे जब तक कि प्राइमरी एड नहीं आ जाता, एम्बुलेंस नहीं आ जाती। कभी कभी धामनोद और इंदौर के बीच में एक्सीडेंट हुआ, आप कार से जा रहे थे, वहां पड़ा हुआ व्यक्ति मिला, धामनोद यहां से दूर है करीब 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर को एम्बुलेंस आने में कम से कम लगेंगे 25 मिनट। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ यही करना है, सीपीआर करना है, टू वेंटिलेशन सीपीआर, टू वेंटिलेशन टू सीपीआर, टू वेंटिलेशन। ओके, तो टिल द एम्बुलेंस इज अराइव्ड and till the patient pulse is back. दूसरा कोई क्वेश्चन? यामिनी मैडम, what to do if airway is obstructed due to the yes, retroversion? retroversion of Yes, tongue. exactly, मैंने वही बोला, टंग फॉल। अभी मैंने बताया था हेड टिल चिन लिफ्ट, अभी मैंने बताया था इन द सस्पेक्टेड सर्वाइकल इंजुरी, जॉ थ्रस्ट। तो ये टंग फॉल होने की वजह से बता था, बिल्कुल सही बोले कि टंग फॉल बिल्कुल होता है। तो टंग फॉल होने के बाद आपको क्या करना है? हेड टिल करना है, चिन लेफ्ट करना है, नॉट सर्वाइकल, सस्पेक्टेड सर्वाइकल इंजुरी। इफ देयर इज अ सस्पेक्टेड सर्वाइकल इंजुरी तो आपकी उसकी गर्दन को हिलाना नहीं है, नहीं तो फर्दर इंजुरी होके क्वाड्रिपेरेसिस, सर्वाइकल डैमेज, परमानेंट डैमेज। तो आपको क्या करना है? सस्पेक्टेड है रहने दीजिए, नहीं भी होगा तो चलेगा, वहां पे सर्वाइकल कॉलर आती है, या तो वो कॉलर बांध दे या फिर सिर्फ जॉ थ्रस्ट करें, जो एंगल है यहाँ पर जॉ का उसको आगे ले आए बस यूं, तो उसका मुंह खुल जाएगा, कुछ एयर तो जाएगी अंदर। फिर से मैं बता दूं, एयर इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, मच इंपॉर्टेंट इज द सर्कुलेशन, CAB, इसीलिए बोला है CAB। तो सर्कुलेशन फर्स्ट एंड देन एयरवे। ओके, वोमिट एंड लिक्विड एस्पिरेशन हो जाने से क्या करें? एक्जैक्टली वही तो है, मैंने इसी समय आपको बताया कि आप उसके मुंह में कोई भी दवाई नहीं डालें, किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दे, किसी प्रकार का कोई लिक्विड नहीं दे, किसी प्रकार की कोई चम्मच नहीं डालें, किसी प्रकार की कोई उंगली नहीं डालें। अब उसके हो जाने के बाद क्या करें? आप कुछ नहीं कर सकते सर। हम लोग एक सैलिक्स मैनुअर होता है, सैलिक्स मैनुअर का मतलब होता है, यहाँ पे क्रिकॉइड प्रोसेस होती है, क्रिकॉइड प्रोसेस को थोड़े से दबा देने के बाद में आपका जो इसोफेगस होता है वो पीछे की ओर दब जाता है, और दबने के बाद में आइसोलेट ट्रैकिया हो जाता है। तो इसोफेगस जहां दब जाता है, थोड़ी देर के लिए इसोफेगस दबता है, तो आप एस्पिरेट नहीं कर पाते, रीगर्जिटेट नहीं करेंगे, रीगर्जिटेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? वॉमिटिंग नहीं होगी। वो स्किल प्रोसीजर है, फिर से मैं बता दूं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सबसे पहले हार्ट चलाने की कोशिश करें। एस्पिरेशन निमोनिया से तो हम जाके आईसीयू में बचा लेंगे, उसकी चिंता नहीं है। एस्पिरेशन निमोनिया से जल्दी व्यक्ति मरता नहीं है, यहां मरने वाला सिर्फ एक ही कारण है, हार्ट इज नॉट पंपिंग प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशांत सर का क्या था क्वेश्चन? मैं पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछे सर, आपका आदेश। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि मेडिको लीगली कितना सेफ है, अगर कोई पार्क में हमने सीपीआर दिया, हम जा रहे हैं रोड और हमने उसको सीपीआर दिया, तो क्या वो मेडिको लीगली सेफ है? कल सर, को वो अभी हम पे क्लेम तो नहीं कर सकता कि नहीं साहब सर, इन्होंने देखिए गलत दो चीजें सीपीआर दे होती है, दिया एक इसकी तो वजह से? हमारा मन साफ है, सबसे पहली बात तो हमारा मन साफ है, एक बात। दूसरा ये होता है कि अभी पेपर में आया था कि 5,000 रुपए आरटीए हेड इंजरी जल्दी पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए मिलेंगे, पेपर में गवर्नमेंट ने ही दिया था। हम्म। तीसरी बात, ना तो हमारे पास चाकू है ना गन है। चौथी बात होती है, रोड पे पड़ा व्यक्ति, हम खुद डॉक्टर हैं,
पीछे हमारे पास होम्योपैथ का टैग लगा हुआ है, वी आर द डॉक्टर। तो हम एटलीस्ट इतनी कोशिश तो कर रहे हैं जितना उस आम व्यक्ति को नहीं मालूम है। कोई मेडिको लीगली नहीं, आप खुद भी जाएंगे चिल्ला चिल्ला के भी बोलेंगे कोई मेडिको लीगली नहीं है सर, हमने बचाने की कोशिश की थी, एम्बुलेंस आई निकल गई। इतना लोगों के पास समय नहीं होता सर, 100-200 लोगों की भीड़ जम जाती है वहां पर, उसके बाद यू आर द मैन। आप सीपीआर किए, एम्बुलेंस आई, कौन था आपको पहचाने में नहीं, आप निकल जाओगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने करे हैं एट ए टाइम, 2-3 जगह ऐसा हुआ है कि हाँ एम्बुलेंस आई और ले गई, वहां जाके व्यक्ति को देखा तो थोड़ा सा हाइपोक्सिक डैमेज से बच गया था, 4 से 5 दिन वेंटिलेटर पर रहा, निकल गया, घर छुट्टी होके चले गया, धन्यवाद साहब आपका। हम्म, देर इज नो एनी टाइप ऑफ मेडिको लीगल क्लेम ऑन यू। क्योंकि आमतौर पे होता है कि मतलब अगर नहीं नहीं हॉस्पिटल सर, गए। ये 15 साल पहले था सर। हाँ। लोग 15 साल पहले क्या करते थे, हेड इंजरी कोई निकाल के नहीं, गाड़ी यूं घुमा के निकल जाते थे, जानो दो यार कौन है। अरे भैया नहीं, इट्स जो गुड। हमारा पता चला कि बाद में हमारा भाई पड़ा हुआ था और हम निकल गए वहां से, सही बात, तो वेरी सर नाइस। मूवीज में बताया गया है, गलत ही है। मैं तो ये गलत मानूंगा, हम लड़ लेंगे उस सरकार से, लेकिन हम्म हम आज तो इसको बचाने की कोशिश करेंगे, वो देखा जाएगा बाद में। हो सकता है आपको अवार्ड मिल जाएगी साहब, इसने एक व्यक्ति की जान बचाई है, वो बात की बात है। अभी तो इसको बचाना है साहब, बस खत्म। और कोई क्वेश्चन? अब मैं अपने आप से ही क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हम प्रेग्नेंट वुमेन में सीपीआर करेंगे? क्या हम चेस्ट इंजुरी, मल्टीपल रीफ्रैक्चर, आप गए कार में, कार डैश हो गई, बड़े इससे टकरा गई और जाके आपको मल्टीपल रीफ्रैक्चर हो गए, क्या हम करेंगे? आप लोगों से पूछता हूं मैं क्वेश्चन ये, हाँ या ना, बस इतना जवाब दे दीजिए। क्यों? वैसे भी तो व्यक्ति मर रहा है। मल्टीपल रिफ्रैक्चर है, डेट इज नोन एज फ्लैल चेस्ट। फ्लैल चेस्ट का मतलब होता है कि पैराडॉक्सिकल मूवमेंट चल रहा है चेस्ट का। प्रेग्नेंट वुमेन में भी नहीं करेंगे, तो 2 लोगों की जान बचाना है, यहाँ तो एक की बात ही नहीं। अब तो इधर अंदर फिटस भी पड़ा हुआ है और ऊपर वुमेन भी है। प्रेग्नेंट वुमेन में भी नहीं करेंगे। कार्डियक अरेस्ट हुआ प्रेग्नेंट वुमेन को अराउंड 3rd ट्राइमेस्टर, 2nd ट्राइमेस्टर मान लीजिए, 2nd ट्राइमेस्टर में हैड सडन कार्डियक अरेस्ट, क्या करेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रेगनेंसी वी कैन डू सीपीआर, यस बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? पेट फूला हुआ है, चेस्ट आपका इतना सा है। अच्छा, एक आपने ऑब्स्टेट्रिक गायनिक ऑप्स में पढ़ा होगा कि सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। अभी मेन एम क्या है? कार्डिक को भरना, पंप करना, कार्डिक को भरना। आपकी इंफीरियर वेना कावा वो बच्चे से दबी हुई है। एज ए कॉम्प्लिकेशन न्यूमोथोरिक्स ऑकर इन द फ्रैक्चर ऑफ रिब्स, बिल्कुल हो सकती है बॉस, मान ली आपकी बात को। फ्रैक्चर से जाके वो लंग से टकराएगी और न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो सकती है। वो कब होगी? जब ज्यादा जोर से चेस्ट टकराया हो या फिर आप ज्यादा जोर से दबा दिए, तो इसलिए 2 इंचेस बोला गया, मैं बताऊंगा आपको। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि दोनों में करना है हमको, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। प्रेग्नेंट वुमेन में अपने ऊपर ही बता देता हूं, जैसे मैं खुद प्रेग्नेंट हूं, ये मान के चलिए, ठीक है। आपका जो एब्डोमेन है फुला हुआ है, 2 लोग हैं, एक व्यक्ति उस बच्चे को लेफ्ट साइड की ओर लेके आएगा। कैसे? वहीं से, जैसे से लेफ्ट साइड है, एक हाथ रख के वो बच्चे को थोड़ी से लेफ्ट साइड लेके आएगा। देन यू डू सीपीआर इन सेम प्रोटोकॉल। क्या हुआ? अब आपका जो इंफीरियर कांव पर प्रेशर आ रहा था, इसलिए बोला जाता है प्रेगनेंसी में लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोया करें, उल्टे हाथ पे सोया करें, उल्टे हाथ पे सोया करें तो आपका बीपी नहीं गिरेगा। एक बात, ये आपने इधर कर दिया सीपीआर विद सेम प्रोटोकॉल जैसे मैंने आपको समझाया, एक बात। दूसरा, इफ देयर इज अ मल्टीपल रिफ्रैक्चर, अरे वैसे भी मरीज मर रहा है, आप सीपीआर सेम प्रोटोकॉल में करिए। हम देखेंगे वहां पर जाके कि सीटी स्कैन करवाने के बाद में कितनी रिफ्रैक्चर थी क्या नहीं थी। कट कट की आवाज आएगी आपको, क्रैप्स क्रैपस आएंगे, जितने भी आएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। यही तो एक मिलिट्री का काम है।
यदि वो बच गया तो आपको हो सकता है कि 2 4 5 10 रिब टूटी और टूट भी गई और अपने से एक और रिब टूट गई, उसके बाद में हम जोड़ देंगे वहां पर जाके, लेकिन अभी तो हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज होने से बच गया। दैट इज ओनली द थिंग। और किसी का और कोई क्वेश्चन? Sir, one person is asking, can you please again describe the pregnancy CPR case? एक बार फिर से। ओके ठीक। सी अगेन, यदि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन में हमको सीपीआर कैसे परफॉर्म करना है, कैसे करना है? फर्स्ट, यू जस्ट एक व्यक्ति को बोलिए कि ये जो बच्चा है उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ले जाए, मतलब उसके हाथ से आप, मतलब अपने हाथ से उसके एब्डोमेन में रखकर उसको थोड़ा सा पुश करेंगे। इजी पुश होता है। पुश होने के बाद में जब लेफ्ट साइड चले जाएगा बच्चा, लेफ्ट साइड होने के बाद में उसके बाद आप परफॉर्म से सेम प्रोटोकॉल जैसे मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि क्या हुआ, आपका जो इंफीरियर वेना का हुआ था वो बच्चे के दबाव से हट गया, हटने के बाद में रिफिलिंग चालू हो गई हार्ट की, ठीक है, और सीपीआर एज एफ सेम प्रोटोकॉल। तो ये समझ में आया आपको? सिर्फ थोड़ा सा पुश करना है बच्चे को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। अब थोड़ा सा आप देखिए कि हाउ टू, अब एज ए फिजिशियन यदि 17 लोग जुड़े हैं तो सभी, आई थिंक सभी डॉक्टर हैं, तो उन लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे हमें रिदम पहचानना है। 2 रिदम शॉकेबल होती है, 2 अनशॉकेबल होती है। जिसमें शॉक देना है, चालू करिए सर, और किसमें शॉक नहीं देना है, ये थोड़ा डिटेल में है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि आपके सामने स्ट्रिप आ गई तो अरे ये तो ये है। कोई पेशेंट स्ट्रिप लेके आ गया कि सर ये मेरे मरीज को था, क्या करेंगे हम इस टाइम? So this patient's in sinus rhythm at the moment. Let's just keep an eye on it there. दैट इज अ नॉर्मल साइनस रिदम, इसे बोलते हैं PQRST। ये अभी रिदम चल रही है। यामिनी मैडम, स्लाइड शो हो रही है, मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes. अब Now, the patient's now gone into ventricular fibrillation. एकदम And in ventricular fibrillation, there's fast. रिदम अभी The machine's alarming to tell me. That's good. Keep an eye on it there. ये साइनस एकदम चल रही है, जो हमारा नॉर्मल ECG था अभी तक, had suddenly some problem in the heart and some problem in the circle of the heart, yeah, circulation in the heart, then suddenly change the rhythm and patient collapsed. Now, the patient's now gone into ventricular fibrillation. That is known as ventricular. And in ventricular fibrillation, there's fast. Fibrillation का मतलब होता है कि आपका हार्ट कैसे चल रहा था, यूं अभी तक ऐसे चल रहा था, अब हार्ट क्या हुआ, यूं चल रहा है। तो यहां पर AED जो बोला गया है, डिफिब्रिलेटर बोला गया है, उसको डिफिब करने के लिए, that is a fact. The machine's alarming to tell me. That's good. Rhythm I had noticed. जो वेंट्रिकल था आपका फिब्रिल कर रहा So है, in ventricular fibrillation, there's fast, chaotic, uncoordinated contraction that is a shock of areas of the myocardium. shock देना, Different bits of the myocardium early defibrill doing its own thing. It's twitching and quivering. rhythm, ये तो ventricular fibrillation. Second is a ventricular tachycardia. ये ventricular fibrillation अभी चल रहा है। Now see the ventricular tachycardia. Defibrillation. Agonal is electrical defibrillation. Tachycardia Now ventricular V- tachycardia, see. is electrical defibrillation. ये है रहा। ये Now this rhythm tachycardia. अभी क्या is a होगा? ventricular tachycardia, VT. Very rapid ventricular contraction, but with a degree of coordination. It is a shockable rhythm. Give the shock. आपने शॉक दिया, ये चल रहा है। Now this is quite a severe ventricular tachycardia, इसलिए and this patient will probably be unconscious. ब्रेन में नहीं जा पा रहा इसलिए। But in some ventricular tachycardias, the patient can remain conscious for हमें as a physician पता periods of time, indeed hours. Two is Although unshockable. they'll feel to treat this with unconscious, we have to, of course. एक तो असिस्टेड, ये ICU There is no में मिलती है। systolic contraction at all. The ventricles and indeed the atria are not moving. Unshockable मतलब And asystole, A means without. कुछ भी नहीं करना।
Of course, this is the rhythm you would get with anyone who was dead. लेकिन एज ए फिजिशियन यदि आप But if someone's gone into this rhythm recently, we would ये बताना चाह रहा हूँ try to reverse it by inducing a shockable rhythm. So लास्ट इज अ pulseless electrical activity. now there's another type of cardiac arrest called pulseless अब देखिएगा ये आपको साइनस रिदम जैसा दिख रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहां पर है, लेकिन यहाँ पल्स नहीं है, यहाँ पल्स नहीं है। तो आपको क्या करना है, ओनली द रिज्यूम सीपीआर, नॉट टू गिव द शॉक। शॉक नहीं देना इसमें। तो शॉकेबल रिदम कौन सी हो गई? दो, VT-VF, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एंड लास्ट टू अनशॉकेबल रिदम इज असिस्टोल, मतलब स्ट्रेट लाइन, एंड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज अनशॉकेबल रिदम। थैंक यू सो मच। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं। यामिनी मैडम। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमें सिखाई जो किसी की जान बचा सकती है, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स। जैसे आपने कहा कि वी आर होम्योपैथिक डॉक्टर्स, तो कई बार पेशेंट तो ऑब्वियसली पेशेंट या अटेंडर आपसे एक्सपेक्ट करता है, बट हम बेसिक मतलब क्योंकि हम कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, हम पैरामेडिक्स नहीं है, तो हमको ये उतना ट्रेन नहीं किया जाता है इस फील्ड में, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच इसके लिए कि आपने तो बता अच्छे दूं से मैं एवरी होम्योपैथ्स को कि हम किसी से कम नहीं है। पहली बात तो ये जान लेना है सबको, और दूसरा ये होता है कि हम किसी से कम नहीं है, हम एमडी से भी ऊपर है। सिर्फ अपने में एक जज्बा और एक अपने में एक हिम्मत होनी चाहिए उन लोगों से बात करने की, उन लोगों के सामने बोलने की। हम किसी के ये नहीं है, कुछ लोग बहुत अच्छे जो हमें सिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो हमारी टांग खींचते हैं, हम भी उनकी टांग खींचना जानते हैं। तो इसी टाइप से थैंक यू। डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है कि हम कॉन्फिडेंटली हमारा काम करें, क्योंकि हम काम सही कर रहे होते हैं बट शायद हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। प्रशांत भैया कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। अरे भैया पूछो यार। ये हमारे मौसी के लड़के। प्रशांत सर आप कुछ कह ही दीजिए। हाँ प्रशांत भैया कुछ कह दीजिए आप। नहीं, मुझे खुशी होती है कि अच्छे नए होम्योपैथ्स जो हमने मतलब स्टार्ट करा था, और उसके बाद से 95 के बाद से अब 2025 में ये चेंजेस देख रहा हूँ, और इतनी स्ट्रेंथ इस तरह से प्रिपरेशन के साथ देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। अपकमिंग होम्योपैथ्स बहुत स्ट्रांग होंगे, ये कॉन्फिडेंट हूँ मैं भी होम्योपैथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने भी वो फेज देखा था, लेकिन अब फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और जिस तरह से डॉक्टर विनीत काम कर रहे हैं और साथ में नॉलेज शेयरिंग का काम कर रहे हैं, डॉक्टर यामिनी यू आर ऑल्सो ग्रेट, हैट्स ऑफ टू यू कि आप ऐसा सेशंस कर रहे हो, इतने अच्छा नए होम्योपैथ्स बडिंग को आप नॉलेज देने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, तो ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। वैभव भी हमारे साथ है, उनको भी साथ में लाया जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं चाहता हूँ डॉक्टर वैभव भी जो एग्रो होम्योपैथी में काम कर रहे हैं, मतलब बहुत दिल मेरा गार्डन हो जाता है कि इतना अच्छा वेरिएशन आ रहा है। ऐसा नहीं कि न्यूरोलॉजी उधर है, ऑप्थेल्मोलॉजी इधर है, ईएनटी इधर है, गायनिक हमारे पास भी है, डॉक्टर विनीत है, डॉक्टर गौरव है, डॉक्टर यामिनी है, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और सभी नए बडिंग होम्योपैथ्स कॉन्फिडेंट हो, आने वाला समय हमारा ही है वाकई में। थैंक यू सो मच सर। और ऐसा नहीं है, मैडम ने आज सुबह 9 बजे से तैयारी करके रखी थी, हम भी 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पहुंच गए थे। तो मैं थैंक यू दोनों को भी बोलना चाहता हूँ कि ये आज इतने कॉन्फिडेंट है कि हम लोगों को सिखा रहे हैं, कुछ चीज सीखने को मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू यामिनी मैडम, थैंक यू वैभव, थैंक यू सो मच सर। सीखने का जज्बा होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, सीखने का जज्बा होना चाहिए। मैं भी यामिनी मैडम को क्लास अटेंड करने के लिए खंडवा से ट्रेवल करता था एवरी वीक, एवरी 15 डेज, तब जाके मैंने लिटरली रिपर्टरी कॉलेज में नहीं सीखी थी 95 में, 92 में, लेकिन मैंने रिपर्टरी जो है वहां जाकर के आशा होम्यो एकेडमी में सीखी, जो जिसका एडवांटेज मुझे अब मिल रहा है। किसी का क्वेश्चन तो नहीं आया ना यामिनी मैडम? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है सर, आई कैन सी एनी। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. I'm really thankful, grateful to Dr. Vineet Sharma for his time and a very valuable knowledge. Sir, thank you very much. मेरे पास शब्द नहीं है आपको शुक्रिया कहने के लिए। Thank you. It was really nice. And जैसे कि डॉक्टर प्रशांत सर ने भी कहा, ये जर्नी हम लोगों ने काफी सालों पहले शुरू की थी, जहाँ पे हम ऑफलाइन वी यूज्ड टू मीट एंड शेयर आवर नॉलेज टुगेदर। एंड आई वांट टू कॉल डॉक्टर प्रशांत आल्सो इन दिस सीरीज। इस सीरीज का नाम ही हमने रखा है रिवाइव द बेसिक्स,
सो इट हैज टू बी बेसिक्स को ब्रश अप करते रहना चाहिए ताकि आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रैक्टिस एवरी डे बेटर हो सके. ऑल्सो वी हैव विद आवर्स. साइड, बच्चे को लेटरल साइड में रखना है क्या, ये वाला आंसर दे दीजिए. हाँ, लेटरल साइड में ही रखना है, बिल्कुल लेटरल साइड में रखना है. और आपको थोड़ा सा पुश करना है, बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं, सिर्फ छोटा सा इन्फीरियर वेना कावा होता है, उसके ऊपर से प्रेशर हट जाए, इतना आपका मेन एम होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं. ओके. और सेम प्रोटोकॉल इन यूनिवर्सल, नॉट इन इंडिया, नॉट इन अमेरिका, नॉट इन, ये सेम प्रोटोकॉल अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोलती है, यूनिवर्सली यही प्रोटोकॉल चलाना है, इसके अलावा कोई भी नथिंग, एक बाल इधर का उधर भी नहीं. थैंक यू. ड्यूरिंग हॉल सीपीआर प्रोसीजर्स लेटरल साइड में नहीं, लेटरल साइड में बिल्कुल रखना है टिल द पल्स इज लाइव, वापस आ जाए एक, और दूसरा पेशेंट कॉन्शियस हो जाए, तीसरा एम्बुलेंस आ जाए, फर्स्ट एड आ जाए. ओके. तो आपको यही करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है, लेटरल साइड में ही रखना है उसको. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस. हमारे एक बहुत अच्छे मित्र डॉक्टर अमोल किरार भी है यहाँ पे, जो भोपाल से है. ही इज ऑल्सो सीनियर प्रैक्टिशनर. डॉक्टर अमोल, सो गुड टू सी यू. Thank you. थैंक यू Namaskar, वेरी sir. मच फॉर ज्वाइनिंग. Yeah, I am just listening. ये बहुत बढ़िया, मस्त मजा आ गया सर. ये हम लोगों को भी अभी क्लासेस हुई थी हमारी कॉलेज में, पीजी, उसमें तो मजा आया, अच्छा लगा, रिवाइव हो गया सब चीजें. थैंक यू सर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सर जी जी. यामिनी मैडम ऐसे अच्छा करते हैं आप, और क्लास Thank you. किया करें, मजा आएगा. बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं आप भी आए और अपना नॉलेज शेयरिंग करें. मैं बताना चाहूंगी डॉक्टर अमोल इज बेस्ड इन भोपाल और एकदम रेपर्टरी के मास्टर है ये. अभी पीजी कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, बट ही इज प्रैक्टिसिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक 15 years और वो काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी है, हमें भी पढ़ाते हैं बीच बीच में. और आप प्लीज आए, रिवाइव द बेसिक्स में एक सेशन करें. जो भी टॉपिक आप चाहे उसका, आपको ओपन इनविटेशन है. आप जो आज्ञा दें, बिल्कुल मैडम. बिल्कुल, तो प्लान करते हैं. थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. Thanks everyone. Thank you, Dr. Vineet, once again. And थैंक यू. we will be back with another session, Revive the Basics, session 5. हम बहुत जल्दी launch करेंगे. Thank you so much. Have a great day ahead. Thank you.